Good morning to everyone. I am Prem Kumar Patle along with third part of development. Dear students, today we will learn about income and other criteria. We will know about the infant mortality rate, about literacy rate, net attendance ratio, body mass index, and we will know about we will discuss about the public facilities. I am going to start with income and other criteria. Dear students, each and every person has different goals, different aspiration. We think on this matter that income is not a single goal of a person. हर किसी के जीवन में इनकम ही केवल एकमात्र गोल नहीं होता है. Other than income, they think about their security, they think about the respect of for them and for others. They want the equal treatment and they want the freedom also. They always think about this. हमेशा उनके दिमाग में इनकम के अलावा कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बारे में वो व्यक्ति सोचता है. उनमें एक सिक्योरिटी होती है, दूसरे हमारा सम्मान की बात होती है जो अपने और दूसरों के प्रति हो. थर्ड ये होता है कि वो इक्वली ट्रीटमेंट चाहता है सोसाइटी में. सोसाइटी के अलावा अपने फैमिली में तो होता ही है, फैमिली, सोसाइटी और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसके थ्रू भी वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है और साथ ही वो फ्रीडम भी चाहता है. व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट आवर लाइफ वी हैव सच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ नेशन. जब हम अपने किसी राष्ट्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में सोचते हैं तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन we may besides average income think of other equally important attributes. क्या हो सकते हैं वो attributes, हम उसको देखते हैं. Firstly we have to know about the per capita income. Okay, this is the very important attribute for a development. You can see on the screen there are three states: Haryana, Kerala and Bihar, and this table is indicating about the per capita income on the basis of 2015 and 16 years. Haryana has a maximum per capita income with rupees 1,80,174, where Kerala has 1,63,475 rupees per capita income and Bihar has only 34,409 rupees per capita income. Okay, through this table we can understand, we can see Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average a person in Haryana earned 1,80,174 rupees in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around 34,409 rupees. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. अगर हम पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखें तो हरियाणा इसके हिसाब से सबसे डेवलप्ड स्टेट होगा, जबकि बिहार सबसे कम विकसित या कहा जाए अविकसित राज्य की श्रेणी में वो आ जाएगा. Through this slide you will learn the other important attributes for development. There are some data which is related to infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio of three states: Haryana, Kerala and Bihar. Firstly we have to learn about what the definition of infant mortality rate, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो. ये होता क्या है इससे पहले आप समझ लीजिए. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. ये बताता है कि किसी स्टेट में
किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ये कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मान लीजिए ये इसने हरियाणा का एग्जाम्पल दे रखा है। हरियाणा में कह रहा है 30, मतलब ये हुआ कि अगर हरियाणा में 1 साल में 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया है तो उसमें से 30 बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र के पहले उनकी डेथ हो गई, इसलिए हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30। नेक्स्ट में आप देखेंगे केरला और फिर बिहार 35। लिटरेसी रेट की बात कर लें। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप। कहने का मतलब ये हुआ कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, ये कहलाता है लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। 14-15 वर्ष की आयु, 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उसी आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो प्रतिशत निकलेगा वो होगा नेट अटेंडेंस रेशियो। कहना मतलब यह है कि अगर 14 से 15 ईयर्स के बच्चों की संख्या 10,000 है और उसमें स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 8,000 है, तो उन दोनों का प्रोपोर्शन निकाला जाएगा, जो अनुपात निकाला जाए, प्रतिशत निकाला जाएगा, और जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो होगा नेट अटेंडेंस रेशियो। हरियाणा का लिटरेसी रेट 82, केरला 94, बिहार 62। नेट अटेंडेंस रेशियो देख लीजिए, हरियाणा 61, केरला 83, बिहार 43। तो बेटे इस स्लाइड के थ्रू आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से वो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे जिसके आधार पर भी हम डेवलपमेंट को देखते और समझते हैं। वो हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पर कैपिटा इनकम में हरियाणा सबसे ऊपर था, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम किसका है? केरला का। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किसका है? केरला का। नेट अटेंडेंस रेशियो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाने वाली संख्या जो बच्चों की, वो कहाँ है? केरल में। ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है? केरल में। कम से कम मरने वाले बच्चों की संख्या जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ है? केरला में। तो हम इस कैलकुलेशन के आधार पर ये कह सकते हैं कि केवल पर कैपिटा इनकम के बेस पर किसी स्टेट की को कैलकुलेट कर लेना, उसके हर एट्रीब्यूट्स को चेक कर लेना, ये संभव नहीं है। तो इन डाटास के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि किसी स्टेट की डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे की वर्क्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम अब पब्लिक फैसिलिटी की बात करेंगे। The average person in Haryana has more income than the average person in Kerala, but lags behind in this crucial areas. ओके, मैंने इसके पहले ही जो स्लाइड में दिखलाया है, तो केरला ऐसे कई सारे चीज़ों में हरियाणा से आगे है। हरियाणा का एवरेज इनकम जो है वो दैट इज़ वेरी हाई, पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी हाई ऑफ हरियाणा, बट सो मैनी फैक्टर्स आर देयर वेयर केरला इज़ अहेड देन हरियाणा। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस। क्या हम एक चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि केवल मनी के आधार पर ही अगर हमारे जेब में पैसे हो तो हम अच्छे से अच्छे गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर सकें, बेहतर जीवन जी सकेंगे? ये संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ यू हैव मनी इन योर पॉकेट but you can't buy pollution free environment, okay? You have a lot of money in your pocket, but how can you ensure that you will get unadulterated medicines? Okay, no. Money may also not be able to protect you from infectious disease. जो संक्रामक बीमारियां होती है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप संक्रामक बीमारियों से बच जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इसके लिए एक ग्रुप जो होता है, पूरा पब्लिक ग्रुप जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सभी परेशानियों को सॉल्व करने में हेल्प करे। ओके, एंड
Actually, for money many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका यह है कि उन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाए, ना कि हम अपने जेब से पैसा खर्च करते जाएं और हम उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएँ। अगर ऐसा होता तो सोचिए कि किसी एक एरिया को कलेक्टिवली सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कलेक्टिवली काम किया जा सकता है कि उस एरिया में पुलिस पेट्रोलिंग करे और उसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन ये चीज़ असंभव होगी कि हर एक घर के सामने में एक गार्ड को तैनात कर दिया जाए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के आधार पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो कलेक्टिवली सर्विसेज हैं उसे पाना चाहिए, वो जो काफ़ी चीप भी होती है और बेस्ट भी होती है। सेकंड एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर केवल आप ही अपने उस गांव से, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, उस गांव में केवल आप ही पढ़ने के इच्छुक होते और बाकी नहीं होते, तो क्या आप आज सरकारी स्कूल में पढ़ पाते? नहीं। ये भी संभव है कि आपके मदर फादर आपको शायद कुछ पब्लिक या प्राइवेट स्कूल्स में भी ना भेज पाते, क्योंकि जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ही नहीं होती, वहाँ किसी प्रकार के स्कूल्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। जब किसी चीज़ की डिमांड ग्रुप में जाती है तो ग्रुप की डिमांड को गवर्नमेंट के थ्रू चीप और बेस्ट वे में आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। You are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Already I have explained about the low infant mortality rate in Kerala. Why the Kerala is ahead than Haryana in public facilities? ओके, पब्लिक फैसिलिटीज़ केरल में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू तैयार किया गया और पब्लिक का सपोर्ट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने में दिया गया। हम अदर स्टेट से हम केरल के को कंपेयर इसलिए करते हैं पब्लिक फैसिलिटी के तौर पर, क्योंकि केरला के पास लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो 21 बेस पर आया होगा, ये आया होगा एडिक्वेट बेसिक हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू। जहाँ जिस स्टेट में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी वहाँ पर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। तो केरला हैज़ एडिक्वेट बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, केरला हैज़ एस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, तभी तो वहाँ का जो नेट अटेंडेंस रेशियो है अदर स्टेट्स की तुलना में बेहतर है। पीडीएस की बात कर लें, सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो ठीक प्रकार से कई राज्यों में काम कर रही है। यदि ऐसे स्थानों में राशन की दुकानें ठीक से नहीं चलती तो इस समस्या का हल करवा सकते हैं। ठीक, तो पब्लिक फैसिलिटी में एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इस पार्ट के इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। इसके पब्लिक फैसिलिटी के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्या चीज़ हैं? बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फैसिलिटीज़। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसे आप सभी बच्चे सोचेंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट द बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है उसे देख लीजिए। वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होते हैं वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हम जो हमारा जो पोषण हो रहा है, हम वो प्रॉपरली नरिश्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हमारी हाइट और वेट के थ्रू इसको पता किया जाता है और इसे कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स। दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है। इसमें क्या किया जाता है कि
जो सबसे पहले बच्चे का वेट कर लिया जाता है, किसी व्यक्ति का वज़न निकाल लिया जाता है, उसे किलोग्राम में निकाला जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति की हाइट निकाली जाती है और हाइट सेंटीमीटर में रखी जाती है। सेंटीमीटर में हाइट निकालने के बाद उसको मीटर में कन्वर्ट कर दी जाती है। जब मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद एक फार्मूला लगाया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो वेट जो किलोग्राम में होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाइट के साथ, और हाइट मीटर में कैलकुलेट की जाती है। इस तरह से बॉडी मास इंडेक्स तैयार किया जाता है। अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, ठीक, अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अंडर नरिश्ड कंसिडर किया जाता है। इफ़ दिस BMI इज़ मोर देन 25 देन अ पर्सन इज़ ओवरवेट, और अगर 25 से ऊपर BMI निकल आती है तो उस पर्सन को ओवरवेट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बच्चों, आज हमने इसको समझने की कोशिश किया। बहुत सारे कंटेंट्स जो आपको शायद समझ में भी आ गए होंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, BMI एंड पब्लिक फैसिलिटीज़, इन सभी पर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।